साची प्रीत हम तुमसे ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਡਾਕਟਰ ਕਿਰਪਾਲ ਸਿੰਘ and this is a program on Voice of Manavta TV with courtesy of Rai Raj Singhuni, and please subscribe to our program. This is a special program regarding Bhakt Ravidas ji, and this is his birthday, so welcome to our participants as well as the audience. It's an informal discussion about what we can learn from his life and his message. You know, in Bhakt Ravidas ji was older than Guru Nanak Sahib. I hear that there are a couple of meetings they had with each other, and his quite a few of his hymns are part of Sri Guru Granth Sahib, because it has similar message as the Guru Nanak's message, along with other saints like Kabir Sahib, Farid Sahib, and Namdev ji, and many others. So, sixth scripture is really the universal interface scripture, devoted to the praises of one and only one supreme being, what we call Ek Onkar. And that is described, of course, in Mool Mantra, the definition of that. Ek Onkar Sat Nam Karta Purush Nirpau Nirvair Akal Murat Ajuni Saibhang Gur Prasad. But all these qualities we know, but to really learn about them, we have to have a Guru. And for that, Guru Nanak Sahib Vani, which Japji Sahib we call, actually name is Jap, begins with the preamble, Ad Sach, Juga Sach, Happy Sach, Nanak Hosi Sach. So that's the truth on which we meditate, reflect upon, and try to live by, and try to incorporate those qualities within ourselves and encourage in our families and in the society around. And that was exactly what was done by the different Bhagats whose compositions are in Guru Granth Sahib, including Bhakt Ravidas. And the status of Guru came when, before passing away, Guru Gobind Singh Ji coronated the Ad Granth as the Guru Granth in the presence of Panch Pyares. So this is briefly our historical background, and congratulations to all participants, audience, and the humanity regarding the birth of Bhakt and Guru Ravidas Ji, whose life story and message we will discuss during this time. So please subscribe to this program if you are not already doing. Sabnu Salam, Sat Sri Akal, hello, Vaheguru Ji Ka Khalsa, Vaheguru Ji Ki Fateh, jo bhi tohada pichokad hove. We'll start over here discussion. Ask Jagdish ji, tell us a little bit about Bhakt Ravidas ji. वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। दुनिया, देश और दुनिया में भगत रविदास गुरु जी की, महाराज की आज गुरु पर्व मनाई जा रही है, और इस अवसर पर ये हमारा जो लाइव डिबेट चल रहा है, इस पर सभी हमारे वीरों को, जो ज्ञानी आप सब डिबेट कर रहे हैं, इसकी लख लख बधाइयाँ, और हमारे वॉइस ऑफ मानवता चैनल की ओर से देख रहे सभी दर्शकों को भी वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। धन गुरुदेव भक्त रविदास गुरु जी अमर रहे, यही हमारा उद्देश्य है, क्योंकि उन्होंने मानव जगत को जोड़ने के लिए अपने वाणी में पहला वाणी उन्होंने कहा, मन चंगा तो कठौती में गंगा। ये शब्दों में तो बहुत छोटा है, लेकिन इसका विस्तार में जाए तो ये महासागर से भी बड़ा शब्द है। और इसी कारण जो दशमेश पिताजी गुरु गोविंद सिंह जी पातशाह महाराज, जो हमारे दसवें गुरु जो गुरु ग्रंथ साहिब का निर्माण किए, और इस गुरु ग्रंथ साहिब में जितने भी भक्तों की वाणी है, क्योंकि दशमेश पिताजी एक दार्शनिक, कवि, लेखक, महान योद्धा और ना जाने क्या क्या गुरु जी को कहा जाता है। और उनके अंदर में जो एक जितने भी भगत थे या जितने भी
ज्ञानी महापुरुष थे भारत के इस धरती में। सभी लोगों की वाणी को उन्होंने गुरु ग्रंथ साहिब में पिरोहित किया। हम अगर कहें तो 42 कवियों की और 36 गुरुओं की उसमें विचार को समाहित किया गया है, जिसमें भगत रविदास गुरु जी की वाणी और गुरु कबीर साहब की वाणी प्रमुखता से है। और इसमें हमारे बहुत सारे जो ज्ञानी हैं लगातार हर दिन कोई ना कोई शब्द कीर्तन के माध्यम से उनकी वाणी को हम श्रवण करते हैं और अरदास करते हैं, सिमरन करते हैं, सूरत में जीवन में मानवता में के जीवन में शरीर में धारण करते हैं। ऐसे महान गुरु रविदास जी के चरणों में कोटि कोटि हम प्रणाम करते हैं। बाकी हम आज सब जुड़े हुए हैं, आप सभी लोग उनके बारे में विस्तार से जानते हैं, हम भी अनजान है, हम तो उम्र में आपके छोटे हैं। आपको आपके माध्यम से हमें भी कोई जानकारी मिले और हम इसको ग्रहण करें, यही हमारा विचार है। Thank you, Jagdish ji. I also want to add before we go to our next participant that no views expressed on this program are strictly of speakers, participants. They are not the official views of Voice of Manata. And we are not scholars, we are ordinary folks discussing different aspects of Bhakt Ravidas ji's life and message. So if we do some mistakes, please excuse us and feel free to make corrections to improve upon the situation. So in advance, I ask apology for any mistakes we may do while talking about the great personality of Bhakt Ravidas. Dr. Kulwinder Singh ji? ਹਾਂਜੀ ਸਰ। ਹਾਂਜੀ ਸਰ। Some of your views? ਹਾਂਜੀ। ਯੈਸ ਸਰ, ਯੈਸ ਸਰ। ਭਗਤ ਰਵਿਦਾਸ ਜੀ ਦੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹਾਂਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਦਾ ਯੁੱਗ ਹੈ ਨਾ, ਸਾਇੰਟਿਫਿਕ ਯੁੱਗ ਹੈ। ਸਾਇੰਟਿਫਿਕ ਯੁੱਗ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਨੇ ਨਾ, ਉਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੁਪਰ ਨੈਚੁਰਲ ਪਾਵਰਸ ਹੈ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤਾ ਫੇਥ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਉਹ ਸੋਚਦੇ ਨੇ ਖਰੇ ਇਹ ਕਹਾਣੀਆਂ ਬਣਾਈਆਂ ਹੋਈਆਂ, ਬਟ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਫੋਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ, ਕਿ ਜੇਕਰ ਅੱਜ ਤੋਂ 100 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਬੈਠੇ ਬੈਠੇ ਬਿਨਾਂ ਤਾਰ ਤੋਂ ਗੱਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿਸੇ ਨਾਲ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਫੋਟੋ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਤੇ ਨੋ ਵਨ ਵੁੱਡ ਬਿਲੀਵ। ਐਗਜ਼ੈਕਟਲੀ। ਅੱਜ ਤੋਂ 100 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਕਹਿੰਦੇ। ਜਿਹੜੀ ਭਗਤਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਇਹ ਅੱਜ ਤੋਂ 500 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਸੋ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਅਸੀਂ ਲੋਕ ਬਹੁਤੇ ਜਾਣੇ ਇਮੈਜਿਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਕੀ ਹੋਏਗੀ। ਅਸੀਂ ਝੱਟ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦਾ ਸਮੇਂ ਤੇ ਕਿੰਤੂ ਪਰੰਤੂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਨਾਲ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਜਸਟੀਫਾਈਬਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਸੋ ਮੈਂ ਭਗਤ ਜੀ ਦੇ ਵੇਲੇ ਦੀ ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਸੁਪਰ ਨੈਚੁਰਲ ਹੈਪਨਿੰਗ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹਾਂਗਾ। ਪੰਕਤੀ ਆਂਦੀ ਹੈ ਭਗਤ ਰਵਿਦਾਸ ਜੀ ਬਾਰੇ, ਭਗਤ ਜਗ ਵੱਜਿਆ ਚੋਂ ਚੱਕਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਮਰੇਟਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿੱਥੇ ਤੇ ਉਹ ਸਮਾਂ ਸੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਛੋਟੀ ਜਾਤ ਦੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਭਗਤੀ ਕਰਨੀ ਤੇ ਦੂਰ ਰਹੀ, ਉਹਨੂੰ ਤੇ ਕੋਈ ਹੱਕ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਉਹ ਪੜ੍ਹ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਸਕਦਾ ਕਿਸੇ ਸਕੂਲ ਚ ਜਾ ਕੇ। ਹਾਂਜੀ ਉਹਨੂੰ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਉਹਦਾ ਕਿੱਤਾ ਜੁੱਤੀਆਂ ਗੰਢਣ ਦਾ ਵਾ ਜਾਂ ਚਮੜਾ ਵੇਚਣ ਦਾ, ਤੇ ਉਹ ਸਿਰਫ ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਦੂਜਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਪਰ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਥੇ ਕੀ ਹੈਪਨਿੰਗ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰੇ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਗਤ ਜੀ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਾਰਾ ਸੰਸਾਰ ਮਹਿਮਾ ਗਾ ਗਿਆ ਚੋਂ ਚੱਕਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਔਨ ਆਲ ਸਾਈਡਸ, ਈਸਟ ਵੈਸਟ ਨੌਰਥ ਸਾਊਥ। ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁਣ ਅਸਲ 'ਚ ਉਹਦੀ ਜੇ ਹਿਸਟਰੀ ਦੇਖੋ, ਜੋ ਸੰਸਾਰ ਅਲਾਓ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਪਾਣਾ ਗੰਡੇ ਰਾਹ ਵਿੱਚ ਉਹ ਰਸਤੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਸੜਕ ਦੇ ਗਲੀ ਦੇ ਕਿਨਾਰੇ ਤੇ ਜੁੱਤੀਆਂ ਗੰਢਦੇ ਨੇ। ਕੁੱਲਾ ਧਰਮ ਟੋਏ ਢੋਰ ਸਮੇਟਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੁੱਲ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਧਰਮ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜੇ ਕੰਮ ਸਨ ਉਹ ਕੁੱਲ ਤੋਂ ਚੱਲਦੇ ਸਨ, ਪਿਤਾ ਪੁਰਖੀ ਕੰਮ। ਸੋ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੁੱਲ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈਗਾ ਸੀ, ਉਹ ਹੈਗਾ ਸੀ ਟੋਏ ਢੋਰ ਸਮੇਟਾ, ਕਿ ਮਰੇ ਹੋਏ ਜੀਵਾਂ ਨੂੰ ਧੋਣਾ ਤੇ ਜੁੱਤੀਆਂ ਗੰਢਣੀ, ਜਿਹਨੂੰ ਸ਼ੂ ਮੇਕਰ ਕਹਿ ਲੈਣੇ ਆ। ਅਗਲੀ ਪੰਕਤੀ ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਜਿਉਂ ਕਰ ਮੈਲੇ ਚੀਥੜੇ ਹੀਰਾ ਲਾਲ ਅਮੋਲ ਪਲੇਟਾ। ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਇਹ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਹਾਲਤ ਹੈ ਕਿ ਜਿੱਦਾਂ ਹੋਵੇ ਤੇ ਹੀਰਾ ਲਾਲ, ਪਰ ਉਹਨੂੰ ਗੰਦੇ ਜਿਹੇ ਕੱਪੜੇ ਵਿੱਚ ਲਪੇਟਿਆ। ਇੱਥੋਂ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਜਾਤ ਛੋਟੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੰਨੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ ਤੇ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਰੱਖ ਕੇ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਜਿਹਨੂੰ ਬੜੀ ਛੋਟੀ ਜਾਤ ਦਾ ਨਖਿੰਦ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਏਡਾ ਵੱਡਾ ਹੀਰਾ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਸਾਰਾ ਸੰਸਾਰ ਉਹਦੇ ਅੱਗੇ ਝੁਕ ਰਿਹਾ। ਰਾਣੀ ਝਾਲਾਂ ਬਾਈ ਦਾ ਅਸੀਂ ਨਾਂ ਸੁਣਿਆ। ਰਾਣੀ ਝਾਲਾਂ ਬਾਈ ਵੀ ਭਗਤ ਜੀ ਦੀ ਦਾਸੀ ਸੀ, ਸੇਵਕ ਸੀ।
ਉਹਨੂੰ Yes. ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਉਸ ਵੇਲੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਤਿਉਹਾਰ ਸੀ ਗੰਗਾ ਦਾ ਤਿਉਹਾਰ। ਗੰਗਾ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਅਭੀਚ ਦਾ ਪੁਰਬ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਨਾ, ਇਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਮੇਲਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਪੰਡਤ ਜੋ ਵੀ ਨੌਨ ਹੁੰਦੇ ਸਨ ਨਾ ਬੰਦੇ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਗਿਆਨੀ ਪਹੁੰਚਦੇ ਸਨ। ਉਹਨੂੰ ਹਾਂਜੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਨਾਮਨ ਆਇਆ ਸੰਗ ਮਿਲ ਬਾ ਨਾਰਸ ਕਰ ਗੰਗਾ ਤੇਟਾ। ਆਸੇ ਪਾਸੇ ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ ਸਲਾਹ ਬਣਾਈ ਕਿ ਆਪਾਂ ਜਾ ਕੇ ਅਭੀਚ ਦੇ ਪੁਰਬ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਗੰਗਾ ਦੇ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਾਂਗੇ। ਤੇ ਭਗਤ ਜੀ ਵੀ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਚੱਲੋ, ਭਗਤ ਜੀ ਵੀ ਨਾਲ ਚੱਲ ਪਏ। ਸੰਗਤਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਤੇ ਭਗਤ ਜੀ ਵੀ ਨਾਲ ਚੱਲ ਪਏ। ਲੱਗਾ ਪੁਰਬ ਅਭੀਚ ਦਾ, ਡਿੱਠਾ ਚਰਜ ਡਿੱਠਾ ਚਲ ਅਚਰਜ ਮੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਕ ਬੜਾ ਚਲਤ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਹੋ ਗਿਆ। ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਆਮ ਦਿਮਾਗ ਸੋਚ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਕੁਝ ਹੋ ਗਿਆ। ਕੀ ਹੋਇਆ ਕਿ ਰਵਿਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਇੱਕ ਕਸੀਰਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ, ਬਾਕੀ ਦੇ ਬੜੀਆਂ ਬੜੀਆਂ ਕੀਮਤੀ ਚੀਜ਼ਾਂ, ਕੋਈ ਸੋਨੇ ਦੀਆਂ ਵੰਗਾਂ, ਕੋਈ ਹੀਰੇ ਜਵਾਹਰਾਤ ਗੰਗਾ ਮਾਈ ਦੀ ਭੇਂਟ ਕਰਦਾ ਪਿਆ ਭਗਵਾਨ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ, ਗੰਗਾ ਮਾਤਾ ਨੂੰ। ਹੁਣ ਭਗਤ ਜੀ ਤੇ ਵਿਚਾਰੇ ਗਰੀਬ ਨੇ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਨਿੱਕਾ ਜਿਹਾ, ਮਤਲਬ ਕਹਿ ਲਓ ਇੱਕ ਪੀਸ ਸੀ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ, ਜਿਹਦਾ ਟਕਾ ਨਾ ਕਹਿ ਲਓ, ਕਸੀਰਾ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਉਹਨੂੰ ਕਸੀਰਾ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਕਸੀਰਾ ਮੈਂ ਸਭ ਤੋਂ ਛੋਟੀ ਜਿਹੜੀ ਕਰੰਸੀ ਸੀ ਉਸ ਵੇਲੇ, ਇੱਕ ਪੈਸਾ ਕਹਿ ਲਓ। ਹਾਂਜੀ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਜਦੋਂ ਭਗਤ ਜੀ ਨੇ ਕਸੀਰਾ ਸੌਂਪਿਆ ਨਾ, ਤੇ ਉੱਥੇ ਸਾਰੇ ਹੈਰਾਨਗੀ ਕੀ ਹੋ ਗਈ ਕਿ ਬਾਕੀ ਤੇ ਹੀਰੇ ਜਵਾਹਰਾਤ ਪਾ ਰਹੇ ਨੇ ਗੰਗਾ ਮਈਆ ਨੂੰ, ਤੇ ਗੰਗਾ ਮਈਆ ਰੋੜ ਕੇ ਲਿਜਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਪਿਆ, ਉਹ ਵਿੱਚ ਡੁੱਬੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਭਗਤ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣਾ ਕਸੀਰਾ ਅੱਗੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ, ਤੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਗੰਗਾ ਮਾਤਾ ਅਪੀਅਰ ਹੋ ਗਈ, ਤੇ ਉਹਨੇ ਹੱਥ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪ ਉਹਨੂੰ ਬੜੇ ਸਤਿਕਾਰ ਸਹਿਤ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕੀਤਾ। ਮਤਲਬ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਭਗਤ ਹੈ, ਭਗਤ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਦੇਵੀ ਦੇਵਤੇ ਤੇ ਗੁਰੂ ਨੇ, ਉਹ ਆਪਸ ਚ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਰ ਫਰੈਂਡਸ, ਉਹ ਮਿੱਤਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਉਹਨੇ ਜਿੱਦਾਂ ਅਸੀਂ ਮਿੱਤਰ ਨੂੰ ਸਤਿਕਾਰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਭਗਤ ਜੀ ਨੂੰ ਸਤਿਕਾਰ ਵਜੋਂ ਉਹਨੇ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕੀਤਾ ਵੀ ਮੇਰੇ ਧੰਨ ਭਾਗ ਹੈ ਭਗਤ ਜੀ, ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਆਏ ਹੋ ਮੈਨੂੰ ਦਰਸ਼ਨ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ। ਤੇ ਉੱਥੇ beautiful. Beautiful. It's like diagrams. We make diagrams to make a point across. So these stories are sort of illustration that way. Illustrations, yes sir. ਹਾਂਜੀ। ਤੇ ਸੋ ਅਖੀਰਲੀ ਪੰਕਤੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਸੂਤ ਇੱਕ ਜਿਉ ਤਾਣਾ ਪੇਟਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਭਗਤਾਂ ਦੀ ਐਸੀ ਅਵਸਥਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਭਗਤ ਵਿੱਚ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਦੇਵੀ ਦੇਵਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਇੱਕੋ ਹੀ ਕਲਾਸ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸਟੂਡੈਂਟ ਹੁੰਦੇ। ਸੋ ਇਹ ਮੇਨ ਮੈਸੇਜ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਭਗਤ ਨੇ, ਭਗਤਾਂ ਨੂੰ ਜੇ ਸੰਸਾਰ ਨੇ ਮੰਨਿਆ, ਜਿਸ ਸਮੇਂ ਤੇ ਜਾਤ ਪਾਤ ਦਾ ਇੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਿਤਕਰਾ ਸੀ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਪਾਵਰ ਸਾਹਮਣੇ ਸ਼ੋ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਉਸ ਅੱਗੇ ਹਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਝੁਕਣਾ ਹੀ ਚਾਹੀਦਾ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀ, ਥੈਂਕ ਯੂ। ਦਲਜੀਤ ਜੀ, ਭਾਈ ਜੀ ਕਾਰ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਮੈਂ ਭਗਤ ਰਵਿਦਾਸ ਜੀ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਹੈ, ਐਸੀ ਲਾਲ ਤੁਝ ਬਿਨ ਕੌਣ ਕਰੇ, ਕਬੀਰ ਨਵਾਜ ਗਰੀਬ ਨਵਾਜ ਗੁਸਈਆ ਮੇਰਾ, ਮਾਥੇ ਛਤਰ ਧਰੈ। माथे छतर तरह जाके छुप जगत को लागे ता पर तू ही टरै। नामदेव कबीर त्रिलोचन सदना सैन तरह, कह रविदास सुनो रे संतो हर जियो ते सबे सरै। सबे सरे, हाँ जी। आया हुण एकदम ते भगत रविदास जी ते ਇੰਨੀ ਕਿਰਪਾ ਸੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਜਿਵੇਂ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਪਹਿਲਾਂ ਬੋਲ ਕੇ ਹਟੇ ਆ, ਨੀਵੀਂ ਜਾਤ ਪਾਤ ਨੂੰ ਦਾ ਕਿੰਨਾ ਬੋਲਬਾਲਾ ਸੀ, ਪਰ ਜਿਹਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਹੱਥ ਧਰਿਆ ਹੋਇਆ, ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਸਾਰੇ ਦਾ ਛਤਰ ਸਿਰ ਤੇ। That's right. ਇੱਕ ਹੋਰ ਵੀ ਸ਼ਬਦ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੀ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਬਿਲਾਵਲ ਰਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਜੇ ਕੁਲ ਸਾਧ ਬੈਸਣਾ ਹੋਏ, ਵਰਨ ਅਵਰਨ ਰੰਗ ਨਹੀਂ, ਈਸ਼ਰ ਬਿਮਲ ਬਾਸ ਜਾਨੀਏ ਜਗ ਸੋਏ। ਰਹਾਉ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਬੈਸ ਸ਼ੂਦਰ ਖੱਤਰੀ ਡੋਮ ਚੰਡਾਰ ਮਲੇਸ਼ ਮਨ ਸੋਏ, ਹੋਏ ਪਨੀਤ ਭਗਵੰਤ ਭਜਨ ਤੇ ਆਪ ਤਾਰੇ ਕੁਲ ਦੋਏ। ਧਨ ਸੁਗਾਓ ਧਨ ਸੁਠਾਓ ਧਨ ਪਨੀਤ ਕੁਟੰਬ ਸਭ ਲੋਏ, ਜਿਨ ਪੀਆ ਸਾਰ ਰਸ ਤਜੇ, ਜਿਨ ਪੀਆ ਸਾਰ ਰਸ ਤਜੇ ਆਨ ਰਸ, ਹੋਏ ਰਸ ਮਗਨ ਡਾਰੇ ਬਿਖੋਏ। पंडित सूर छत्रपत राजा भगत बराबर और न कोई, जैसे प्रैण पात रहे जल समीप, बंद रविदास जन्मे जग होए। It's the same kind of thing what you're talking to Deet, huh? Anji, Bhai Sahab, you like to add something?
ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਬਾਬਾ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ ਜੀ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਹੁਣੇ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਆਪਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਭਗਤ ਰਵਿਦਾਸ ਜੀ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਭਗਤ ਹੋਏ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਤਕਰੀਬਨ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ 41 ਸ਼ਬਦ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿ ਜਾਤ ਪਾਤ ਤੇ ਇੱਕ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ, ਇੱਕ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੀ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹੀ ਭਗਤੀ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਨਾ ਕਿ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਹੋਰ ਪਾਸੇ ਘੁੰਮਣਾ ਹੈ। ਤੇ ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹ ਨੀਵੀਂ ਜਾਤ ਦੇ ਉਸ ਟਾਈਮ ਦੇ ਆਉਂਦੇ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਕੀਤੀ ਕਿ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸ਼ਲੋਕ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਆਏ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੱਥਾ ਟੇਕਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਬਾਕੀ ਗੁਰੂਆਂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਹੈ। ਸੋ ਬਹੁਤ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਭਗਤ ਹੋਏ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਇੱਜ਼ਤ ਕਰੀ ਹੈ ਆਪਾਂ ਉਨੀ ਥੋੜੀ ਹੈ। Thank you ji, thank you, very nice. ਭਗਵਾਨ ਦਾਸ ਜੀ, yes ਦਲਜੀਤ, yes. ਮੈਨੂੰ ਹੋਰ ਧਿਆਨ ਆਇਆ ਸੀ ਬੇਗਮਪੁਰਾ ਸ਼ਹਿਰ ਕੋ ਨਾਮ ਵਾਲਾ ਸ਼ਬਦ ਤੇ ਹਾਂਜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਟੇਟ ਆਫ ਮਾਈਂਡ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਕੋਈ ਗਮ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆ, ਬੇਗਮ, ਬਿਨਾਂ ਗਮ ਤੋਂ, ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਚਿੰਤਾ ਤੋਂ, ਨਾ ਖੌਫ ਨਾ ਤਰਵਾਰ। ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਆਉਂਦਾ ਸੀ ਸ਼ਬਦ, ਇੱਕਦਮ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਅਵਸਥਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੀ। That's right. ਨਾਲੇ ਇੱਥੋਂ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਸਬਕ ਮਿਲਦਾ, ਜਿਵੇਂ ਦਲਜੀਤ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਬੇਗਮਪੁਰਾ ਸ਼ਹਿਰ ਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਕੱਲ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹਿੰਦੂ ਰਾਸ਼ਟਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜਾਂ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜਾਂ ਫਲਾਨਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਬੇਗਮਪੁਰਾ ਦੀ ਕਨਸੈਪਟ ਭਗਤ ਰਵਿਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਉਹੀ ਆ, ਜਿਵੇਂ ਬਾਹਰ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸਭੇ ਸਾਂਝੀ ਵਾਲ ਸਦਾਇਨ ਕੋਈ ਨਾ ਦਿਸੇ ਬਾਹਰੋ ਜੀਓ, ਜਾਂ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇੱਕ ਪਿਤਾ ਇੱਕ ਅਸਕੇ ਹਮ ਬਾਰਿਕ। ਸੋ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਕਨਸੈਪਟ ਹੈ ਉਹ ਤਾਂ ਯੂਨੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਦੀ ਹੈ ਅੰਡਰ ਇੱਕ ਓਂਕਾਰ, ਜਿਹਨੂੰ ਕਿ ਸਾਰੇ ਭਗਤ ਇਨਕਲੂਡਿੰਗ ਭਗਤ ਰਵਿਦਾਸ ਜੀ, ਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਜੀ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਪ੍ਰੋੜਤਾ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਪਰ ਹੋ ਕੀ ਗਿਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਮਨੂਵਾਦ ਤੋਂ ਛੁਟਕਾਰਾ ਨਹੀਂ ਪਾ ਸਕੇ, ਅਸੀਂ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਚੀਜ਼ਾਂ ਖੜੀਆਂ ਕਰਤੀਆਂ। ਇਹ ਕੀ ਹੈ ਜੀ, ਇਹ ਨਾਮਦੇਵ ਵੰਸ਼ੀ ਹੈ, ਇਹ ਕੀ ਹੈ ਮਜਬੀ ਵੰਸ਼ੀ ਹੈ, ਇਹ ਕੀ ਹੈ ਰਵਿਦਾਸੀ ਵੰਸ਼ੀ ਹੈ, ਇਹ ਫਲਾਣੇ ਵੰਸ਼ੀ ਹੈ, ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤੀਆਂ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਸਭ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਜੋੜਿਆ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇੱਕ ਓਂਕਾਰ, ਜਿਵੇਂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਸੋ ਉਹੀ ਇੱਕ ਓਂਕਾਰ ਦਾ ਮੈਸੇਜ ਸਾਰੇ ਭਗਤਾਂ ਨੇ ਇਨਕਲੂਡਿੰਗ ਭਗਤ ਰਵਿਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਦਿੱਤਾ। ਤੇ ਨਾਲੇ ਭਗਤ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਪੈ ਗਈਆਂ ਨੇ, ਕੋਈ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਭਗਤ ਨਹੀਂ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਸਾਨੂੰ ਗੁਰੂ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਕੋਈ ਕਹਿੰਦਾ ਗੁਰੂ ਨਹੀਂ ਸੰਤ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਕੋਈ ਹੋਰ ਕਹੀ ਜਾਂਦਾ। ਇਹ ਤਾਂ ਗੱਲਾਂ ਮਾਮੂਲੀ ਜੀਆਂ, ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਚਾ ਦਰਜਾ ਹੀ ਭਗਤ ਹੈ। ਭਗਤ ਰਵਿਦਾਸ ਜੀ ਆਪ ਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਜਿਹੜਾ ਭਗਤ ਬਰੋਬਰ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਈਵਨ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਵੀ ਭਗਤ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਵਈਏ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਯਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰਚੇ ਨੇ ਅਖੀਰ ਤੇ ਆਉਂਦੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸੋ ਆ ਨਿੱਕੀਆਂ ਨਿੱਕੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨਾਲ ਡਿਸਟਰੈਕਸ਼ਨ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅੱਜ ਕੱਲ, ਬਜਾਏ ਇਹਦੇ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠੇ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਇਕੱਲੇ ਨਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਕਹਿ ਲਓ, ਅੱਲਾ ਕਹਿ ਲਓ, ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਹਿ ਲਓ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ। ਜੇ ਬਣਦਾ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅਸੂਲਾਂ ਨੂੰ ਪਛਾਣਦੇ ਹੋਏ ਤੇ ਅਮਲ ਕਰਕੇ, ਨਾ ਸਿਰਫ ਬੁੱਤ ਪੂਜਾ, ਆਰਤੀ ਪੂਜਾ, ਹੋਰ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ 'ਚ ਵੀ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਭਗਤ ਰਵਿਦਾਸ ਜੀ ਉਹ ਸੁਪਰੀਮ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਵਿਚਾਰਨ ਤੇ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ ਭਗਵਾਨ ਦਾਸ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ। हाँ जी देखिए आवाज आ रही है सर? हाँ जी आ रही है। देखिए सही बात तो ये है कि हमें चंद मुट्ठी भर लोगों ने, जो विदेशी लोग हैं, उन लोगों ने हमें इस तरीके से बांट के रखा है, इस तरीके से हमें गुलाम बना के रखा है हमारे समाज को, कि हम लोग उस गुलामी से उभर नहीं पा रहे हैं। आज भी हमसे वो, हम बच्चा पैदा कर सकते हैं लेकिन बच्चे का नाम नहीं रख सकते। हम करोड़ों रुपए का मकान बनवा सकते हैं लेकिन मकान में जी हाँ जी करो बात। कुछ कह रहे थे सर? नहीं आप बोलिए। अच्छा, हम करोड़ों रुपए का मकान तो बनवा,
मकान तो बनवा सकते हैं, लेकिन मकान में हम गृह प्रवेश करवाने के लिए कुछ विशेष लोगों का आमंत्रित करते हैं। हमारे यहाँ गमी हो जाए, दुख हो या खुशी हो, उनको धन लूटने से मतलब रहता है। इसलिए हम, हमारे जो पूर्वज थे, उन्होंने उस समान से, उन चंद्र मुट्ठी वाले लोगों से, हमारे संत शिरोमणि रविदास जी ने बहुत बड़ा एक जो क्रांतिकारी आंदोलन आज भी चल रहा है, उसी विचारधारा में उन्होंने, लेकिन आज हमारे पास संविधान है, कानून व्यवस्था है, लेकिन उनके पास संत शिरोमणि जी के समय ना तो संविधान था, ना कोई कानून व्यवस्था थी। इसके बाद भी उन सामंतशाही लोगों से इन्होंने बराबर जो है आंदोलन किया, इनके खिलाफ अपनी आवाज को बुलंद की, और इसके बाद भी इन्होंने अपनी बात, इतने सिद्ध पुरुष थे कि अपनी बात मनवाई भी। तो जैसे इन्होंने कहा है भाईचारा के संबंध में, भाईचारा के संबंध में इनको बहुत अच्छे विचार रहे, और भाईचारा के संबंध में इनकी अच्छी कथनी करनी रही। जैसे इन्होंने कहा जात को तोड़ने की परंपरा, जात जात में जात है दिन केवल की पात, रविदास ना मासुक बन सके जब तक है जात। जब तक है जात, तो हमारे जो संत शिरोमणि जी थे, उन्होंने बहुत बड़े स्तर पे इन मनवादी विचारक लोगों को, जिन लोगों ने हमें सिर्फ अंधविश्वास की तरफ ढकेलने का काम किया है, अंधविश्वास के अलावा कुछ नहीं दिया, उनको अगर नीचा दिखाया, तो हम ये कहेंगे कि हमारे महापुरुषों ने, संत महापुरुषों ने, चाहे वो बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर साहब की बात कर लो, नामदेव साहब की बात कर लो, या हजरत अली साहब की बात कर लो, पैगंबर हजरत अली साहब की बात करो, या और तमाम प्रकार के, मतलब तमाम जो है महामानव बौद्ध जी की बात करो, इन सभी ने उस समय आंदोलन किया है कि जिस समय उनके पास कोई अधिकार नहीं था, कुछ नहीं था, और सामंतशाहियों का दबदबा था। आज तो हम स्वतंत्रता की सांस जी रहे हैं। इसी तरह से बाबा साहब ने या अन्य जितने हमारे जो है संत महात्मा हुए हैं, उन्होंने समाज को वो दिशा निर्देश दिया, हमें शिक्षित बनाया, जबकि शिक्षा का बहुत जबरदस्त अभाव था। अभी पिछली डिबेट में एक साथी कह रहे थे कि इसके लिए उपाय क्या है, कैसे हम अपने महापुरुषों को का नाम जो है आगे बढ़ाएं, धर्म प्रचार करें अपने महापुरुषों का। तो उसके लिए सबसे बड़ा एक ही तरीका है कि जब तक हम अपने बच्चों को उनके बारे में नहीं बताएंगे, हमारे बच्चों के अंदर हमारे महापुरुषों के बारे में ज्ञान नहीं होगा, तब तक हमारे बच्चे कैसे जानेंगे। हमारे उत्तर प्रदेश में कुछ इस प्रकार का कदम उठाया गया, लेकिन हमारे जो निकम्मे लोग हैं, वही लोग माननीय बहन जी के बारे में कहते हैं, अरे उन्होंने मूर्तियां बनवा दी, उन्होंने ये बनवा। हमारे अगर महापुरुषों की मूर्तियां हैं तो हमारे बच्चे भी जानेंगे कि ये हमारे महापुरुष थे। लेकिन हमारे अपने लोग उन बातों को हजम नहीं कर पा रहे हैं। उन बातों से रविदास जी की विचारधारा, रविदास जी ने बहुत अच्छी बात ये थी कि उन्होंने हमें अंधविश्वास में नहीं रखा। इतने बड़े महापुरुष होने के बाद उन्होंने आत्म ज्ञान की बात की, धर्म प्रचारक बने, हमारा समाज का को जोड़ के, चाहे वो हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, अन्य जितने भी दलित हो, पिछड़ा वर्ग हो, बैकवर्ड हो, मुस्लिम हो, सभी को जोड़ करके सभी के सम्मान का ध्यान रखा गया। इसके बावजूद हम
उन महापुरुषों को आज क्या स्थितियां हैं, आज क्या है। हम लोग मंदिरों में जाके तमाम प्रकार का चंदा देंगे, करोड़ों रुपए खर्च करेंगे, लेकिन अपने संत महात्माओं के लिए 2 रुपए खर्च करने के लिए नहीं है, और ना ही उनकी विचारों को मानना चाहता कोई। सही तो बात हमें है। सबसे ज्यादा पहले अपने विचारों को अपने जी नहीं, आपकी बात बिल्कुल ठीक है। हमारे महापुरुष जो विचारधारा बता के गए हैं हाँ जी, ठीक है। ਤੇ ਅੱਛਾ ਆਪਣੇ ਜਗਦੀਸ਼ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ, ਤੁਹਾਡੇ ਖਿਆਲ ਅਨੁਸਾਰ ਕਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਇਹ ਅੰਧ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਚੋਂ ਨਿਕਲ ਕੇ ਕਿਵੇਂ ਘਰ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰੀਏ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਗਾਏ ਜਾਣ, ਨਾ ਕਿ ਬੁੱਤ ਪੂਜਾ ਜਾਂ ਤਸਵੀਰ ਪੂਜਾ ਜਾਂ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ। जी देखिए, जिस समय भगत रविदास गुरु जी का अवतरण इस धरती में हुआ, उस समय जातिवाद और ये जो पाखंडवाद है ये इस दुनिया में, इस भारत देश के अंदर में चरम सीमा पर थी। और उस चरम सीमा के समय पे जो सच के राह में चलने वाले गुरु जी को जब ज्ञान प्राप्त हुआ और उन्होंने बेबाकी से, बिना डर से अपनी बातों को अपने वक्तव्यों के माध्यम से, अपने दोहे और साखियों के माध्यम से उस समय में, उस कालखंड में जिस ढंग से भगत रविदास गुरु जी ने मानवता को जोड़ने के लिए जो काम किए या जो विचार उन्होंने रखे, उस समय उनको कितनी कठिनाइयां आई होगी ये आप समझ सकते हैं कि भगत रविदास गुरु जी को सबसे नीची जात का गुरु हिंदू समाज के लोग मानते हैं, और उनकी कहे हुए बातों को या उनके इन महान विचारों को कभी उन्होंने हिंदू वर्ग ने स्वीकार नहीं किया, बल्कि जो पहले गुरु हमारे गुरु नानक जी थे, उन्होंने भी मानवता को जोड़ने के लिए एक ओंकार सतनाम आदि सच जुगादि सच नानक होसी भी सच का संदेश दिया, और उन्होंने भी मानवता को जोड़ने के लिए जो संदेश दिया कि जो सच का राह है, सच का मार्ग है, यही इंसान को जोड़ सकता है। आपसी भाईचारा, प्रेम, सौहार्द जहाँ पे वो होगा वहीं सच का मार्ग होगा। ऐसे ही भगत रविदास गुरु जी का जो जन्म, जो नीचे से नीची जात, जिसको चमार जाति का लोग बोलते थे कि ये जूता सिलते थे और अपने घर में रहकर ही उस परम पिता को या उस ईश्वर को ये अपनी जीवन काल में साक्षात्कार हुए और सच का मार्ग देने के लिए उन्होंने संकल्प लिया। सो जगदीश जी, ऐसा क्यों नहीं हम करते? हमारे साथी की बात पे हमें थोड़ा सा 1 मिनट दे दीजिए, मतलब ये आधा सेकंड दे दीजिए, आधा मिनट। हाँ जी, जरूर। हमारे साथी ने कहा कि हमारे अपने लोग नहीं मानते थे, ये बिल्कुल सत्य बात है। हमारे अपने कबीरदास जी हुआ करते थे। कबीरदास जी एक बार सत्संग करने के लिए रविदास जी के पास पहुंचे, काफी सत्संग किया, और सत्संग करने के बाद उनको प्यास लगी, तो उन्होंने कहा भाई पानी चाहिए, पानी पीना है। रविदास जी ने जब पानी दिया, अपनी वही कोट क्या कहते थे, चमड़े बोलने वाली, उसको कठौती से जब पानी गिलास में भर के दिया, तो कहने लगे, उनको थोड़ा अनिच्छा हुई और वो पानी नहीं पिया। वो पानी जब नहीं पिया तो वो उसकी 2 बूंद उनके चद्दर पे गिर गई थी। उस चद्दर को, मतलब जो अंगोछा डाले थे, वो उस अंगोछे पे गिर गई। जब वो घर पे अपने आश्रम पे पहुंचे तो उनकी चेली जो है कमाली हुआ करती थी। कबीरदास जी की चेली जो थी, कमाली नाम की लड़की थी। उस कमाली ने जब कपड़ा, वो चद्दर धोने का काम किया, अंगोछा, तो उसने वो दाग मुंह से छुटा दिया। जब मुंह से छुटाया तो उसका को तीनों लोग मतलब वर्तमान, भविष्य और भूत, तीनों लोगों का पता चलने लगा। तो इतनी योग हो गई। बाद में कबीरदास जी उनके पास गए, पानी मांगा, लेकिन उन्होंने कह दिया, बोले अब तो वो कमाली पी गई, इसलिए अब आप बोलिए।
That's an interesting story. हाँ जी. So बात ये है भाई साहब, हमें क्या भजन मंडली नहीं क्रिएट करनी चाहिए जिस पर कि उनके शब्द जो है वो गाए जाएं, बजाय बुद्ध पूजा के भजन मंडली जिसमें कि उनके गीत, उनके शब्द जो उच्चारे हैं वो वह गाए जाएं, हौली हौली उनका असर होगा गाते गाते. बिल्कुल इसका ये आप जो तरीका बता रहे हैं ये तरीका भी ठीक है, लेकिन इसके बाद एक मुझे लगता है ऐसा, चूंकि हमारे यहाँ यूपी में हमारी अपनी सरकार रह चुकी है, लेकिन हमने उस समय भी ये संदेश भेजा था, कई चैनलों के माध्यम से संदेश भेजा, लेकिन हमारे अपने लोगों की सुनी नहीं जाती है. मायावती जी के टाइम पे मैंने कहा था कि कक्षा 5 से लेके कक्षा 8 तक रविदास जी, कबीरदास जी, बौद्ध जी और नामदेव जी, जितने भी हमारे हाँ जी, अनिवार्य विषय कर दीजिए, हिंदी विषय में उनका एक पाठ कर दीजिए, उससे हमारे बच्चे पढ़ेंगे तो बच्चों को उनके बारे में ज्ञान रहेगा, पता चलेगा. ठीक, पर उसने किया नहीं. हाँ, नहीं किया, कौन करता है? ये बड़ी बात है. पावर में होते हुए भी जो उसने ये सेवा नहीं निभाई तो वो कैसी लीडर हुई, पछड़े हुए मार्ग की. नहीं, अब आप लोग समझ सकते हैं मायावती जी के कौन नहीं जानता, शायद आप भी जानते होंगे ठीक से. हाँ जी, हाँ जी, यस. मायावती उसके जो मेंटर थे वो काशीराम जी थे. जी जी जी, काशीराम जी पंजाब से थे. या सो मेरा कहने का मतलब ये है कि कोई भी जो जैसे कलाकार लोग गीत बनाते हैं और वो गाते हैं, लोगों पर असर होता है. ऐसे ही जे कोई भजन मंडली ਜਾਂ कोई कविता का समागम होए, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਲੋਕਾਂ ਤੇ ਅਸਰ ਹੋਏਗਾ. क्या ख्याल है जगदीश जी ਤੁਹਾਡਾ? करो हाँ जी भगवान दास जी. ये जो आप कह रहे हैं बिल्कुल सच बात आप कह रहे हैं, क्योंकि जब तक विचारों को, वाणियों को लोगों तक, जन जन तक नहीं पहुंचाएंगे तो उनके विचारों से लोग अवगत नहीं होंगे, तब तक उसको मानेंगे नहीं. तो आज जो जितने भी गुरुओं की जो वाणी है वो कहीं न कहीं किताबों तक सीमित हो गई है. जो ज्ञान है, कुछ लोग पढ़ लिख गए, तब वो पढ़ते हैं, तब उनको ज्ञान होती है, लेकिन जो हजारों लाखों के बीच में उनका विचार का प्रचार प्रसार होना चाहिए, और तभी ये अज्ञानता को हम मिटा सकते हैं. क्योंकि भगत रविदास गुरु जी की जिस वाणी को जितना लोगों तक लेके जाना चाहिए, उतने लोगों तक आज तक के जितने साल जो बीत गए, वहां तक कहीं ना कहीं इसको जन जन तक ले जाने में हमारे लोगों की, हमारे अपने लोगों की ये कमी रही है. और ये सब हम सब लोगों का दायित्व है कि आज हम ये बड़े बड़े मीडिया वाले होने के बावजूद भी हम वैसा मानवता चैनल में आज इसका डिबेट कर रहे हैं, और ऐसी बातों को लोग आज उसके जन्म शती के अवसर पर लोग सुन रहे हैं. मुझे निश्चित रूप से ये लगता है कि इसका असर हमारे मानव समाज के ऊपर में पड़ेगा, क्योंकि सोशल मीडिया का जमाना है, और सोशल मीडिया के माध्यम से हम लोग अपने लोगों को महान पुरुषों की जानकारी को दे सकते हैं और जागरूक कर सकते हैं. थैंक यू जी, थैंक यू. डॉक्टर विंदर सिंह. हाँ जी सर, हाँ जी सर, जिस तरह भैन जी शब्द की गल कर रहे थे ना, शब्दां नूं याद आ गया. शब्द है भगत रविदास जी का, बेगमपुरा शहर को नाम. हाँ जी, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਜਿਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਭਗਤ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨਾਲ ਜੁੜ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਉਹ ਐਸੀ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਿਵਾਸ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਕੋਈ ਗਮ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦੇ, ਕੋਈ ਗਮ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦਾ. ਦੁੱਖ ਅੰਦੋਹ ਨਹੀਂ ਤੈ ਠਾਓ, ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਦੁੱਖ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਅੰਦੇਸ਼ਾ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ. आगे है कि ना तस्वीज खराज ना माल, खौफ ना खता ना तरस सिवा. देयर इज नो फियर, वहां कोई डर नहीं रहता. खता मीन्स वहां कोई कमी पेशी नहीं रहती, कोई आदमी की जो सभी बुराइयां खत्म हो जाती. अब मोए खूब वतन गह पाई, वहां खैर सदा मेरे पाई. भगत जी बोलते हैं कि वो ऐसी जगह है, ऐसा स्थान है, यहाँ भगवान से हमेशा आदमी को कृपा मिलती है, खैर मिलती है, मदद मिलती है.
नहीं जी, that's a किसी very दूसरी superior thought. हाँ जी, ਇਹਦੇ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ, it's a superior thought. कायम दाइम सदा पातशाही दोमना सेम एक सौ आही। जो लास्ट लाइन आई लाइक टू शेयर, लो लास्ट लाइन है इस शब्द की ना, वो ये है कि कह रविदास खलास हमारा, जो हम शहरी सो मीत हमारा। ये ओनली वही लोग, वो मेरे मित्र हैं, वो मेरे साथ रहने वाले हैं, जो इस शहर के रहने वाले हैं। कहने के बाद भगत जी कह रहे हैं कि मेरे साथी केवल वही हैं जो भगवान से जुड़े हैं। ਉਹ ਗੱਲ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਪਰ ਮਾਈ ਪੁਆਇੰਟ ਅਗੇਨ ਹੀਅਰ ਇਜ਼ ਕਿ ਵੀ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਖਜ਼ਾਨੇ ਨੇ, ਇਹ ਆਮ ਪਬਲਿਕ ਨਾਲ ਕਿਵੇਂ ਸ਼ੇਅਰ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੁਝ ਅਸਰ ਹੋ ਸਕੇ। ਉਹਦੇ ਲਈ ਆਪਣੇ ਥਾਟਸ ਦਿਓ ਦਲਜੀਤ। ਇਹੀ ਆ ਵੀ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਭਜਨ ਮੰਡਲੀ ਸ਼ਬਦ ਗਾਏ ਜਾਣ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਲੈ ਕੇ ਵਿਚਾਰ ਵਟਾਂਦਰਾ ਸਾਂਝੇ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਿਚਾਰ, ਤਾਂ ਕਿ ਹੋਰ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੇ। ਐਂਡ ਡਰਾਮੇ ਵੀ ਖੇਲੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਤੇ। ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਤੇ ਡਰਾਮੇ ਵੀ ਖੇਲੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਕਿ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਉਹ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਬੁੱਤ ਪੂਜਾ ਜਾਂ ਹੋਰ ਐਵੇਂ ਪੈਸੇ ਬੇਵਕੂਫ ਖਰਚੀ ਜਾਣੇ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਲੈ, ਉਹਨਾਂ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ, ਉਹਦਾ ਵੇਸਟ ਹੈ। ਆਈਡੀਆ ਸਾਡਾ ਇਹ ਆ ਕਿ ਪਬਲਿਕ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਆਮ ਜਨਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਖਿਆਲਾਂ ਨੇ ਸਾਂਝੇ ਕੀਤੇ ਜਾਣ, ਉਹਦੇ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਸੋਚਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ। ਕੀ ख्याल है भगवान दास जी? बिल्कुल सही बात है, लेकिन मुझे तो ये लगता है आपकी बात तो सही है, क्योंकि फिलहाल तो यही उपाय है जो आप बता रहे हैं। लेकिन जब भी हम कहीं से भी, किसी भी स्टेट से, अगर कहीं हमारा दलित या बैकवर्ड समाज का या मुस्लिम साथी या पंजाब में जैसे सरकार में आए, तो हम तो ये चाहेंगे कि अगर एक विषय में हमारे महापुरुषों का जो है पाठ्यक्रम होना अगर हो जाए, तो मुझे लगता है इससे अच्छा नहीं रहेगा। क्योंकि जब हम अगर कहीं ड्रामा या भजन करते हैं, जैसे नामदेव जी, संत जो नामदेव जी थे, वो जो है भजनों के माध्यम से ही विख्यात हुए, लेकिन हमें अपना समाज ही नहीं पहचान पाया। और भजन वालों को, अगर हम भजन वालों को कहीं छोड़ते भी हैं, तो भजन वाले हमारे अपने लोग सुनने को तैयार नहीं होंगे। उनके पास अर्थ की व्यवस्था चाहिए, क्योंकि हमारा समाज जो है सबसे पहले तो कमजोर स्थिति में, अर्थ से कमजोर है। दूसरी चीज है ना, अब जैसे हम लोगों ने कल किसी समय पे अंबेडकर जी का ड्रामा खेलना चालू किया था, तो 50 जगह विवाद भी हुए, लेकिन उन विवादों को तो झेलते रहे। हमारा समाज जहाँ जब हम उस ड्रामा पे करते थे, तो वही लड़के ये कहते थे, अरे जब तुम्हारे पुरखों के ऊपर हुआ होगा कुछ, आज काहे के लिए इसको गा रहे हो, काहे के लिए कर रहे हो। तो हमारे अपने लड़के मानने को, जब ही समझ में आएगा जब उनको एक विषय अनिवार्य कर दिया जाए। जैसे आपने देखा होगा, कहीं तुलसीदास जी का पाठ आता है, कहीं रामचंद्र जी का आता है, कहीं द्रोणाचार्य जी का आता है, तमाम महापुरुषों के पाठ आते हैं उनके, जो चंद्र मुट्ठीवार लोग थे, जो हमें गुमराह करके रख रहे हैं, जो हमारा और हमारे समाज का शोषण करते रहे, उनके तो पाठ्यक्रम है, लेकिन हमारा कोई पाठ्यक्रम नहीं है। बिल्कुल आपकी बात ठीक है, पर इसके कैसे, इसका इलाज क्या है जगदीश जी? क्या की इलाज किया है इस चीज का, किमें कीता जा सकता? इलाज यही है कि हम अगर किसी भी स्टेट में, जिस स्टेट में हमारा अपना दलित, बैकवर्ड या मोहम्मद या शेख के साई भाई साथी अगर हमारा कहीं से भी मुख्यमंत्री या सत्ता में पहुंचता है, तो वो अपने यहाँ ये विषय अनिवार्य कर दे कि महापुरुषों का जो है वो अनिवार्य रहेगा। तो हमें लगता है धीरे धीरे हमारा समाज उनके प्रति जो है जानना चालू हो जाएगा। लेट अस ट्राई, कोशिश करो, देखो क्या बनता है। आपके विचार तो अच्छे हैं। डॉक्टर कुलविंदर सिंह जी, ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਵਿਚਾਰ ਹੈ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਵੇਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ?
ਪ੍ਰੈਕਟਿਕਸ ਦੇਖੋ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮੈਸੇਜ ਹੀ ਅਗਾਂਹ ਪਹੁੰਚਾਉਣਾ ਸਭ ਤੋਂ ਜੋ इम्पोर्टेंट होता है ना, सबसे इम्पोर्टेंट बात यही है कि जो भगत कह गए हैं उस चीज को हमें आगे पास करना है। पहले खुद उसे अंडरस्टैंड करना है, उसको उसके कहने के मुताबिक हमें चलना है और औरों को भी बताना है। सबसे बड़ी तो उनकी सेवा यही होती है, जैसे एक बाप होता है, बाप को होता है कि मेरा बच्चा है जो मेरे नक्शा कदम पर चले। इसी तरह भगत वो पूजा, सबसे बड़ी पूजा यही मानी जाती है कि हम उनको फॉलो करें, जैसे उन्होंने किया वैसा हम करने की कोशिश करें। तो जो मैं कट गया था नेट, तो वो जो आखिरी में लाइन बोल रहा था ना, आखिरी पंक्ति थी उस शब्द की, कह रविदास लिख लिया है, जो हम शहरी सोवीत हमारा लिख लिया है मेरा। उनके कहने का मतलब है कि हमारे शहरी कहने का मतलब वही है, उसी को ही मैं अपना मानता हूं, जो भगवान को की भक्ति करेगा वही मेरा असली रिश्तेदार, वही मेरा फॉलोवर है, वही मेरा शिष्य है। सो भगत जी का एक शब्द मैं शेयर करना चाहता हूं। शब्द था, माधो जल की प्यास ना जाए, जल में अगन उठी अधिकाए। ये शब्द जो भगत रविदास जी ने बोला है ना, इस शब्द का मतलब है माधो भगवान को कहा है। वो बोलते हैं कि मेरी ऐसी अवस्था है, मेरी ऐसी पोजीशन है कि मछली को मुझसे बोला है कि जैसे मछली तबीयत होती है ना, मेरा मछली जैसा हाल है कि जैसे मछली पानी के बिना नहीं जी सकती, पानी के बिना मर जाती है, इसी तरह से मैं भी अगर मुझे भगवान की भक्ति ना मिले तो मुझे ऐसे लगता है जैसे मैं मर गया। हाँ जी, मछली के जो उदाहरण दिया ना, उन्होंने बड़ी डीप उसका मीनिंग किया। माधो जल की प्यास ना जाए, जल में अगन उठी अधिकाए। भगत रविदास जी कह रहे हैं कि जल में हमने देखा है कि मछली की प्यास इतनी प्रबल है, इतनी प्रबल है कि एक तो है ना वो पानी के बिना नहीं रह सकती, वो पानी के बीच में उसकी अवस्था को उन्होंने एक्सप्लेन किया है। वो बोलते हैं जल में अगन उठी अधिकाए, कि जैसे हम पानी पीते हैं तो हमें तो तृप्ति मिल जाती है, ठंडक पहुंचती है, लेकिन बोलते हैं भगत जी कि मैंने मछली की पोजीशन देखी है कि पानी के बीच रहने के बाद भी उसके अंदर जो अग्नि है कम नहीं हुई, पानी के साथ उसका प्यार कम नहीं हुआ, बड़ा है। अगन उठी अधिकाई का उसका जो हम मीनिंग ऐसे लेंगे कि आम जो आदमी पानी के बाहर रहता है वो तो पानी 1, 2, 4 गिलास पी ले तो उसकी प्यास खत्म हो जाती है, लेकिन वो बोलते हैं मछली 24 घंटे पानी के बीच रहती है लेकिन उसकी प्यास खत्म नहीं। कहने का मतलब है कि जो भगत होता है वो 24 घंटे भी भक्ति करे तो उसको ये नहीं लगता कि अब मैंने प्रभु से बहुत प्रेम कर लिया है। आगे जो शब्द में उदाहरण दी है ना, माधो जल की प्यास ना जाए, जल में अगन उठी अधिकाए, तू जलनिध हो जल का मीन। सो आप जलनिध हो, जल के समंदर हो, मैं उसकी मछली हूँ। भगत जी बोलते हैं जल में रहो जल है बिन की, पानी में ही मैं जिंदा रह सकती हूँ, पानी के बिना मैं मर जाती हूँ। नेक्स्ट एग्जांपल दी है तू पिंजर। हाँ जी, वो तो गल डॉक्टर साहब ठीक है ਤੁਹਾਡੀ, आई एग्री। पर मेरा सवाल ये है कि ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਵਿਚਾਰ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਪਰ ਸਾਡੇ ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਪ੍ਰਚਾਰਨ ਦਾ ਢੰਗ ਨਹੀਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਹੈ। ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦਾ ਢੰਗ ਨਹੀਂ ਪੈਦਾ ਕਰਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਨੇ ਉਸੇ ਦੀਆਂ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਰਹਿ ਜਾਣੀਆਂ ਨੇ, ਖਿਆਲਾਤ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਕਲੋਜ਼ ਰਹਿਣਗੇ। ਸਾਨੂੰ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਹਾਊ ਟੂ ਮਾਰਕੀਟ them, ਜਿਵੇਂ ਕੋਈ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਵਧੀਆ ਚੀਜ਼ ਹੋਵੇ, ਪਰ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਨੂੰ ਮਾਰਕੀਟ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੋ ਜਿਹੀ ਹੋਈ ਜੇ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਸੋ ਉਹਦਾ ਮਾਰਕੀਟ ਦੇ ਤਰੀਕੇ ਦੱਸੋ ਵੀ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਨਾ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰਕੀਟ ਕਿਵੇਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਐਵਰੀਡੇ ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚ। हाँ जी सर, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਦੋ ਹੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਜਿਹੜਾ कोई भी जो धर्म होता है ना, उसमें 2 अंग मेन माने जाते हैं। एक तो उसका जो पार्ट ये होता है कि जो भगत जी हमारे पास, भगत तो कभी मरते ही नहीं है, वो सदैवी अमर होते हैं। तो एक तो होता है उनकी याद हमारे पास है, पर याद से बड़ा होता है जो वो लिख गए हैं हमारे लिए, जो हमारे लिए लिख गए हैं ना अपने मन के विचार। अगर हम उनको, उनकी बानी को फॉलो करेंगे तो जो भगत जी चाहते थे हमें उससे ही मालूम पड़ेगा कि उन्होंने हमें क्या करने के लिए बोला है।
सो सबसे पहले तो शिष्य के लिए होता है तो वो अपने भगत की, अपने गुरु की जो उन्होंने हमें उपदेश दिया उसको उसके चले। और उसको उपदेश को चलने के लिए जो सबसे आसान तरीका होता है वो होता है कि हम सभी उनके जो शिष्य हैं, शिष्य इकट्ठे बैठकर उनके गुणगान करें और साथ के साथ ऐसी जो प्लानिंग करें कि जो उसका उपदेश आप भी माने और औरों तक भी पहुंचाएं। सो उसके लिए सत्संग करना, उनकी वाणी को पढ़ना, विचारना, उसके अकॉर्डिंगली चलना और औरों को बताना, मेरे ख्याल में सबसे जरूरी काम तो यही होता है। थैंक यू जी दिलजीत। अच्छा, एक हम थोड़ा सा कहना चाहेंगे। हाँ जी, हमारे डॉक्टर साहब का अभी हमारे बड़े साथी जो डॉक्टर साहब कह रहे थे, तो हम डॉक्टर साहब को बड़ा धन्यवाद दूंगा, लेकिन हम एक चीज कहना चाहेंगे इसमें कि हमें वैसे भी तो हमारा समाज बहुत मानसिक रूप से जो है बीमार समझ लीजिए आप। अगर हम भक्ति या पूजा पाठ के बारे में बात करें तो ये तो हमें नहीं हजम होता, क्योंकि भक्ति है क्या। जो हमारे संत शिरोमणि जी ने भक्ति की है वो भक्ति क्या थी, जो भक्ति आज की जा रही है वो भक्ति क्या है, इनमें बहुत जमीन और आसमान जितना फर्क है। यस, जैसे माला फेरत गया जुगबीर, गया न मन का फेर, कर का मन का फेर, ये मन का होए। तो आत्म बिना नर आत्म ज्ञान बिना नर भटके, कोई मथुरा कोई काशी, पानी में मीन प्यासी, मोय सुन आवत हासी। हिरना मन बसत कस्तूरी, बन बन फिरत दासी, ना मंदिर में ना मस्जिद में, मैं तो हूँ तेरे पास में, बंदा कहाँ फिरता तलाश में। तो मतलब पूजा जो होना चाहिए, भक्ति जो होना चाहिए, भक्ति तो एक आत्मा का आभूषण है। आत्मा का जो भोजन होता है वो भक्ति है। भक्ति होती कैसी है? भक्ति तो एक मतलब ईश्वर जो है, देखो भगवान को मेरे समझ से हमारे साथी जो भी समझे वो अलग बात है, लेकिन मेरे समझ से ईश्वर तो निराकार और निर्लेप और एक ही रस है। सर्वव्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम से प्रकट हो तो मैं जाना। अब उसके लिए क्या चाहिए? श्वासा श्वासा सिमरन करो, वृथा श्वास न जाए, ना जाने ये श्वास का आवन होए ना होए। तो जो भक्ति है, भक्ति तो शब्द मात्र की है, वहां तो शब्द भी नहीं है, वहां तो शब्द भी नहीं है, क्योंकि शब्द बाद में बनता है, ईश्वर पहले है। Yes. Well, thank you, Ji. We are kind of running out of time now, so we have to close. I'm sorry. There are a lot of people to be able to express their views. I'm really sorry that we cannot continue because time is running out. So again, many thanks for your participation. And I know it was a short notice, and you did wonderful, all of you. And we hope to have you in future programs participate too. So thank you all the participants, and thank you the audience, and please remember these are views expressed in this program are individual and not of the Voice of Manavta TV's official views. So वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह जी। सब ਨੂੰ ਮੁਬਾਰਕ ਹੋਵੇ ਭਗਤ ਰਵਿਦਾਸ ਜੀ ਦੇ ਜਨਮ ਦਿਨ ਦੀ। बहुत बहुत मुबारक सभी को।